That is I'm your not opinion. afraid. That is your You opinion. are afraid to answer. No, sorry. What do you think? Excuse me, everybody. This is exactly what we don't need. We don't need people to tell her whether she's afraid or not. What Mohra is one of the. No, I have answered. That is I'm your not opinion. afraid. That is your You opinion. are afraid to answer. No, sorry. What do you think? Excuse me, everybody. This is exactly what we don't need. We don't need people to tell her whether she's afraid or not. What Mohra is nonsense. one of the most courageous women we've come across. So let's put that aside. And let's not ask extraneous. If she has a way of answering it, she has answered it. Let's respect that. And let's move on because many other people want to ask questions. Yeah. I will. No, let me. Bala, you can put this on record that we stand with the democratic aspirations of the people of Kashmir, and then you write your opinion on what you think those aspirations are. That's all. Sir, I have answered. No sir. heckling, please sit. I have answered. With full respect, kindly sit down. Yeah. Sir, your question, yes sir. Yes sir. Extremist. What do we call this, an extremist or not? No. Riya. Okay, so second. No sir. No. His It's question. okay. Whatever it is. Home So Minister. for me, extremists, just because वो आपके ideology के साथ खड़े नहीं होते. अच्छा, the first one is for you. Okay. Sir, first of all, I really want to understand why. This is on record. I think I'll just keep it on record. Unless I say otherwise, yeah. So, I really want to understand why they keep claiming that they have exterminated all forms of left-wing presence in this country, and then they have to continuously come up with urban Naxal, dimagi Naxal. आप खत्म कर चुके हैं ना? कहाँ से आ गए थे? So the fact that you have to continuously acknowledge and create paper tigers and say इनसे बच के रहो, ये बहुत dangerous है. You're doing this because you know कि आप इतना resource जमा करके देश के आम नागरिकों के आदिवासियों को जान से मार देने से ये आइडिया, आई थिंक दैट्स व्हाट दे मीन व्हेन दे से अर्बन नक्सल एंड दिमागी नक्सल. वो लोग, दिमागी नक्सल का क्या मतलब है? जो लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार के पॉलिसीज को क्रिटिक करने के लिए या उनसे डिसएग्री करने के लिए, दैट्स व्हाट दे मीन आई थिंक. तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, आप तो दिमाग के अलावा भी बहुत चीजें इस्तेमाल करते थे, लेकिन आप भी तो बहुत क्रिटिसाइज करते थे सरकार को. सुबह से शाम तक आप क्रिटिसाइज करते थे. आपके लीडर्स फोटोज शेयर करते हैं आज भी कि हम इस प्रोटेस्ट में थे, उस प्रोटेस्ट में थे, ऐसे हमने कांग्रेस का विरोध किया. तो तब जो आप कर रहे थे वो नेशनलिस्ट था. आज लेकिन जो बाकी लोग कर रहे हैं कि सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सडनली एंटी नेशनल कैसे हो गया? और अगर आप खत्म कर चुके हैं लेफ्ट को इस देश में, तो बार बार आपको ये जरूरत क्यों पड़ती है कि लेफ्ट से एसोसिएटेड मूवमेंट्स या जेएनयू या कम्युनिज्म या इन तमाम चीजों के आसपास आप इस तरीके के जार्गन बार बार फेंकते रहिए समाज में और बोलते रहिए इनके साथ मत जाना. आप ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोग उनके साथ जा रहे होंगे, शायद आप नहीं कर पाए हैं खत्म उनको लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को. सो आई थिंक दैट्स I think both of us, you are also. Both of us are. So I think Riya. Yeah. Riya, you are. We'll answer. Riya can You answer. Sir, I will disagree with you, sir. I have met so many ex-servicemen or currently serving servicemen and their families who are in absolute solidarity with this movement. मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं खुद हैरान हो गई कि पहले जो लोग एकदम भक्ति वाले पोस्ट डालते थे भाजपा मोदी के लिए, वो लोग इसके इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स भेज रहे थे हमको, आप जो देश के लिए कर रहे हैं, hats off to you, this is what the army stands for. And I was so humbled because honestly speaking, sir, army में, I'm sure a lot of you have done stories on the armed forces. आर्मी में ये चीज होती है कि आप मंदिर भी होगा, गुरुद्वारा भी होगा, मस्जिद भी होगा, चर्च भी मैंने देखे हैं अलग अलग कॉम्पाउंड्स में जहाँ पे वो कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं. तो ये प्रैक्टिस कि आप टॉलरेंस रखेंगे
आर्मी के इंस्टीट्यूशन के अंदर, ये चीज़ तो मैंने आर्मी में ही देखी थी, बाकी और इंस्टीट्यूशन में मैंने नहीं देखी है। दुख की बात है कि अब मैंने कुछ कैंट एरियाज में भाजपा के झंडे देखे हैं और मैं बहुत शॉक्ड हुई कि कैसे भाजपा के झंडे कैंट एरिया के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं होता है। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड बाय दैट। I was brought up ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप अगर मेरे फैमिली, आसपास के फैमिलीज जो फौजी फैमिलीज होते हैं उनसे पूछेंगे तो वो आपको हर तरह की भाषा के शब्द भी बता पाएंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा बोल भी पाएंगे। खाना बनता है अलग अलग घरों में, अलग अलग जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है आप वहाँ का खाना सीख करके वो खा रहे हैं। तो आपको ऐसे कितने फैमिलीज मिल जाएंगे जो मान लीजिए अगर यूपी के हैं उनसे पूछेंगे सबसे अच्छा खाने में क्या लगता है, वो आपको बता देंगे कि महाराष्ट्र का हमको वड़ा पाव सबसे बेहतर लगता है। आप पूछेंगे कि आपको सबसे खूबसूरत भाषा क्या लगती है, पूछेंगे कि सबसे फेवरेट कविता क्या है, आपको बता देंगे राजस्थान के लोग टैगोर की कोई कविता। तो दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कि आप एक ऐसे समाज में एग्जिस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपसे बहुत लोग अलग हैं, लेकिन यू हैव अ म्यूचुअल सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी। सेंस ऑफ कम्युनिटी बहुत होता है फौज में, क्योंकि आपका एक यूनिट होता है। वो मैंने एक्चुअली फौज से सीखा। उसके बाद आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन को भी समझा, वो तभी समझ पाई जब थोड़ा और पॉलिटिकल हुई, तब मुझे समझ आया कि मिलिट्राइज जोन्स का पॉलिटिक्स क्या होता है, वहाँ पे किस तरीके से आर्मी स्टेट के एक्सटेंशन के रूप में काम करता है, और जहाँ पे स्टेट कंट्रोल करना चाहता है सेक्शंस और कम्युनिटीज़ को, वहाँ पे आर्मी किस तरीके से काम करता है, ये भी मैंने देखा। मैंने ये भी देखा कि वो फौजी जो कहते हैं कि हमारे राशन में देखिए कितना पानी है, और एक तरफ आप देखिए जो राशन हमें आता है सरकार से, वो राशन लाइनों में जाने के बजाय आप देखिए जो ऑफिसर है इंचार्ज उनके घर में जा रहा है। इस पे बात रखने पे उसका कोर्ट मार्शल भी हो जाता है, ये भी हमने देखा। तो एज अ फौजी किड जो फौज में फौजी इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, हमने काफ़ी चीज़ें सीखी फौज से, और ये कहते हुए कि बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए फौज से, वी स्टिल से दैट आर्मी, आप देखिए ना, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, कायदे से इन तमाम इंस्टीट्यूशंस का काम जनता को सर्व करना है, और जहाँ जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशंस स्टेट को सर्व करने लगता है, वहाँ पे वो आइडियाज़ जो मेरे बचपन के वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहाँ पे उनके ऑल्टरनेट में उनको मान लीजिए उनको पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए आपको खड़े होके मिलते हैं। सेंस ऑफ कम्युनिटी जो मेरा शायद I mean it also comes from a sense of privilege because my father was an officer in the army. That's not the, I mean my experiences will not be shared by others. तो ये जो मुझे सेंस ऑफ कम्युनिटी समझ आया, या जो सेक्युलरिज्म समझ आया फौज का, आप देखिए उसके नाम पे, फौज के ही नाम पे सबसे ज़्यादा राजनीति भाजपा करती है। अगर जवान शहीद हो जा रहे हैं तो इस पे बात नहीं हो रही है कि ऐसा कोविड के दौरान हुआ कि उनके बॉडी को दफन करने के लिए, क्योंकि वो मार्जिनलाइज कास्ट से आ रहे हैं, जगह नहीं मिली गांव में, ये हुआ है। इस तरीके की तमाम चीज़ें हमने विटनेस की। तो इंस्टीट्यूशन, आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन जब स्टेट को सर्व करने लगता है, तो वो चीज़ें जो मुझे लगी कि आर्मी से मुझे मिली, फौज में मिली, उन्हीं चीज़ों के कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में खड़ा हो जाता है। दैट इज आई थिंक व्हाट आई वुड से। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।